अशोका अपने अपनी आर्मी अबेंडन कर दी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अशोका हैड द स्टैंडिंग आर्मी दो ही डिड नॉट fought any major war, right? So now he is known for his peace policy, non-aggression, cultural conquest. He became a great proponent of Buddhism. According to Mahavansha and Deepavansha, he was converted to Buddhism by his nephew. That is the fact. That's Nigrudha. So Nigrudha was very young Buddhist monk, and his nephew अशोका का नेफ्यू था। तो अशोका के नेफ्यू ने ये दीक्षांत करते ना जिसको लाइक बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना, तो वो प्रोसेस किसने की थी? अशोका नेफ्यू निग्रोधा। ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द दिव्यवादना समुद्र अ मर्चेंट टर्न मॉन्क कन्वर्टेड हिम। ठीक है, तो समुद्र तो कहा जाता है कि समुद्र और निग्रोह इन दोनों का नाम आता है इक्वली, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक आएगा तो टिक कर सकते हो, समुद्र या निग्रोह बोथ। क्लियर? नाउ बुद्धिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। क्लियर? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर बुद्धिज्म पहुंचा तो इट्स क्रेडिट गोज टू अशोका वाज द फर्स्ट रूलर, राइट? ही सेंट हिज सन, वन सन महेंद्र एंड वन डॉटर संघमित्रा। ठीक है, दे वर्क एज द धम्म मात्रा और द प्रोपोगेटर ऑफ धम्म आउटसाइड इंडिया, राइट? सो he sent them to Sri Lanka also, appointed dharma mahamattas like or dhamma mahamattas to propagate dharma among various social groups, right? And now the third Buddhist council, ये fact हम लोग already कर चुके हैं। Now in the course of his second dharma yatra tour, so he like when he goes for propagation of dhamma itself, the only purpose of to propagate dhamma, so the journey would be called as dharma yatra. Clear? So during his dharma yatra he went to Lumbini, he visited Lumbini और वहाँ पर the birthplace of Buddha, और he their dharma yatra tour में actually he had established some like stones out of there, he like placed inscriptions also there, and he had served like food, like slaughter of animals तो ban किया वहाँ पर Lumbini। Clear? तो regulate किया, established धर्मशाला hospitals are throughout his thing। Clear? during this yatra यहाँ भी कही जाता है। अब देखो अशोका के इंस्क्रिप्शंस एंड अशोका धम्मा, तो इंस्क्रिप्शंस लाइक दे आर वेरी गुड फूड फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी ऑलवेज लाइक फोकस अपॉन व्हेन ही वांट टू गेट एनीथिंग फ्रॉम Ashoka's rule, right? So inscription are favorite part. So here these inscriptions are divided into 4 parts: major rock edict, minor rock edict, major pillars, minor pillars। इसमें हमको मेजर रॉक एडिक्ट और मेजर पिलर्स पढ़ने हैं। माइनर रॉक एडिक्ट और माइनर पिलर्स के बारे में केवल हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कहाँ मिले, किस नाम से मिले, क्या दिया हुआ है। लेकिन रॉक एडिक्ट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस अबाउट द पॉलिटी एंड द कल्चर वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन to construct the history of during the Ashoka period from these rock edicts. So 14 major rock edicts we found, and along with that, like for example, from where we get that the Ashoka established the policy of non-violence, or Ashoka was involved in the Kalinga war. So we have to remember that's the number of that particular rock edict, right? So here that's major rock edicts, minor rock edicts, major pillar edicts and minor pillar edict। तो अब देखो edicts के बारे में याद रखो कि जो inscriptions मिले हैं हमें वो पाली, प्राकृत, संस्कृत, खरोष्ठी, अरामाइक सब लैंग्वेज में मिले। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बोलना, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी एंड संस्कृत स्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि पाली इज लैंग्वेज। ठीक है, तो ब्राह्मी एंड पाली एंड प्राकृत, टू राइट पाली एंड प्राकृत द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड। ठीक है, so here widely distributed throughout the empire especially in the areas of public settlement। तो largely ये जो inscriptions हैं, rock edicts हैं, pillars हैं, कहाँ establish किए गए? जो public settlements हुआ करते थे वहाँ पर। ठीक है, so pillar edicts की बात करें तो they were mostly inscribed in later part of his reign। so here जो रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर एडिक्ट्स में डिफरेंस ये है कि अशोका के एंटायर पीरियड को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके रेंज का जो फर्स्ट हाफ पार्ट होगा उसमें उसने रॉक एडिक्ट्स स्टैब्लिश करवाए और जो लेटर पार्ट है उसमें पिलर एडिक्ट्स स्टैब्लिश करवाए। ठीक है, क्लियर? सो यूजुअली जो पिलर एडिक्ट्स होते थे कैसे होते थे? मोनोलिथिक पिलर्स। आपने देखी भी जो पिलर्स है वो मोनोलिथिक पिलर्स। मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक पार्ट यूज होता था कंस्ट्रक्शन में पिलर्स के। नाउ ईच सरमाउंटेड विद अ फाइनली स्कल्प्टेड एनिमल कैपिटल लाइक लॉयन कैपिटल, बुल कैपिटल वी हैव ऑलरेडी सीन। सो बुल कैपिटल ऑफ वेयर, व्हिच इज वेरी फेमस, बुल कैपिटल ऑफ, कल बताया भी था, रामपुरवा। रामपुरवा इज वेरी फेमस साइट फॉर बुल कैपिटल, रामपुरवा। ठीक है, बिहार। Now, in his inscription, Brahmi, Kharosthi, Prakrit, Aramaic and Greek language deciphered by James Spencer have been used.
Clear? This is very important fact with respect to the language and script used for edict and inscriptions. Ashoka inscription do not contain certain key idea associated with the Buddha's teaching. ठीक है, तो धम्म के बारे में बात की, बुद्धा की टीचिंग, लाइक जो मैंने बताया, टेनेट्स का यूज नहीं किया, जो की प्रिंसिपल्स है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस आर अबाउट धम्मा. प्राकृत फॉर्म ऑफ धम्मा लिटरली मीनिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस. तो अगर धम्मा का राइट ऐसे पूछते हैं व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ धम्मा, इट मींस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ righteousness inspired by Buddhist upasak dhamma, like who are follower of dhamma are known as upasak. Common person are called upasak. तो कल का अगर डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा उसमें उपासक टर्म दिया था की टर्म्स में, है ना, तो उपासक. सो बुद्धा टीचिंग फॉर द लेटी, लेटी मींस द कॉमन पीपल. क्लियर? सो like basic dhamma principle were non violence, mutual respect and understanding between the people of different sects and beliefs. Clear? So we will find that Ashoka also propagated that we should have the mutual tolerance. Mutual tolerance means that we should accept the beliefs or other religion also. Clear? It means that Dhamma was orthodox belief propagated by Ashoka. It should be the wrong answer, wrong statement. Okay? That was based upon the mutual respect, mutual religious sentiments. तो mutual religious sentiments को accept करना, that was the key theme also. ठीक है? So here his policy of Dhamma included the state's concern of the welfare of its people. तो welfare of its people, it was a code of conduct or ideal social behavior. तो अगर देखेंगे कुछ major points उसमें क्या क्या है, like his Dhamma was aimed at creating, ये सारे points important है याद रखना, because Dhamma के principles के बारे में अगर कोई question आएगा, जैसे आ भी चुके हैं, तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि Dhamma के principle were based on which of the following tenets. तो उसमें क्या क्या उसका पार्ट था. तो Dhamma includes what? To extend respect, consideration, compassion, tolerance towards slaves and servants. तो ये ऐसे ABCD करके ऑप्शन दिए होंगे, तो we should know that Dhamma includes what? Clear? Respect for teachers, obedience to parents. तो जो रॉक एडिक्ट्स हैं उनमें ये सारा डिटेल दिया हुआ है कि we should do what, people should do what in Pali language. Generosity towards friends and relatives, regards and donation to brahmanas and shramanas. तो ऐसा नहीं कि like he propagated Dhamma so he just avoided other religions, so he also inspired people to go for donation to other religions as well, like the brahmanas and shramanas as well. So a concern for all living being, an abstention from destroying life, like he propagated non-violence and tried to make people regulated, like through the abstinence of destroying others' life. Clear? Achha, one more fact is there, when like he also used like severe punishment just for the propagation of justice. तो ऐसा नहीं कहता कि नॉन वायलेंस था तो जो क्रिमिनल्स होते थे और जजमेंट के प्रोसेस में ही इज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट. ठीक है, तो जस्टिस के मैटर्स में ही यूज्ड सीवियर पनिशमेंट. नाउ अ क्लोजर लुक एट द Ashokan edict illustrate that the basic attributes of Dhamma. So if you study all the edicts, you will find that these edicts were depicting compassion, charity, truthfulness, purity and gentleness also. So one by one we will like look at the important edicts कौन से हैं. तो जो underline किए हुए हैं, that is you have to memorize. Clear? That is the difference between the underline edict and non-underline. तो underline कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यह important है क्योंकि ये पूछे गए, सारे edicts पूछे गए previously. Clear? तो which edict provides the prohibition of animal sacrifice? First edict. Similarly, third edict like mentioned Pradeshvika, Rajukas, Yuktas. तो ये officials हैं, their need for going on tours for inspection every 5 years a part of their other duties preaching Dhamma. तो ये जो राजुकास थे, लाइक ये सब ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनको फर्दर ड्यूटी में इन्वॉल्व किया गया धम्मा प्रोपोगेट करने के लिए. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है? थर्ड एडिक्ट से. फोर्थ एडिक्ट प्रोवाइड द भेरी घोषा एंड धम्म घोषा. लाइक भेरी घोषा इज लाइक abstinence from physical expansion and transfer to the Dhamma Ghosha, replaced by propagation of Dhamma. So this information we give from, we obtain from fourth edict. Clear? Similarly, fifth edict, appointment of Dhamma Mahatma. तो धम्म महात्मा से के जो हमें एविडेंस है वो किस एडिक्ट से मिलते हैं? फिफ्थ एडिक्ट से, धम्म महात्मा. ठीक है. सो a special cadre of officials interested to spread Dhamma within the kingdom, Dhamma Mahamatas. Sixth edict, मंत्री परिषद and officers like Pulisani and Pratibhe. तो इसको छोड़ सकते हो, that's not important, very important, but we should go with that the information was given in the edict. Now seventh, about religious tolerance.
सो रिलीजियस टॉलरेंस के इंफॉर्मेशन में कौन सा एडिक्ट से मिलती है, लाइक 7th एडिक्ट। 8th एडिक्ट, रॉयल प्लेजर टूर्स, जो विहार यात्रा है और रिप्लेस्ड बाय धम्म यात्रास। तो पहले जो किंग्स यात्राएं करते थे कैसे करते थे, प्लेजर प्लेजर बेस्ड टूर्स करते थे, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय धम्म यात्रा, धम्म टूर्स। अशोका वेंट टू लुम्बिनी, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ धम्म यात्रा, ठीक है। तो डिड अशोका विजिटेड लुम्बिनी, यस, क्लियर। नाउ 9th 10th देख लो क्या है एक बार। 9th क्रिटिसिज्म ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज, इंस्टेड ले स्ट्रेस ऑन धम्मा कंडक्ट। तो वेरियस सेरेमनीज लाइक फ्रूजिलिटी को डिमोरलाइज किया गया कि फर्दर एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को नहीं करना चाहिए, क्लियर। देन 9th एडिक्ट। 10th, king desires no more fame or glory, so king should go for no more fame, unnecessary fame or glory, ठीक है, that's mentioned in 10th edict। 11th में क्या mention है, announces that the gift of dhamma being the best gift of all gift, dhamma included giving respect to elders and good behavior toward themselves। This is how we get the information like about the moral code of conduct one should have, right। then 12th edict mentions of ethikija mahamatka, तो इनका एक नाम mention किया गया which is charge of women's welfare। तो एक एडिक्ट है जिसमें विमेन वेलफेयर के लिए किसी अथॉरिटी का नाम दिया गया, ठीक है। नाउ देखो 12th along with 7th I believe, है ना, 7th and 12th collectively both of them provide the information about the religious tolerance। 7th में भी रिलीजियस टॉलरेंस दिया हुआ है, 10th में अगर देखोगे 12th में, तो यहाँ ऑल्सो दैट्स एंड अपील्स फॉर नॉट ओनली टॉलरेंस अमंग sects but also for people to honor and understand the dhamma of others, clear। so both the edict 7th and 12th provides the information of religious tolerance, clear। now 13th क्या कहता है, 13th this is the one of the, अगर एक कोई एडिक्ट चूज करना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट एडिक्ट कौन सा है, तो वो 13th एडिक्ट, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, क्योंकि कलिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ धम्म का, और धम्म को प्रोपोगेट किया गया एडिक्ट से, तो कौन सा एडिक्ट प्रोवाइड करता है इस रूट कॉज को, जो 13 एडिक्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर एडिक्ट्स, क्लियर। पसंद में कि अगर 13 नहीं होता तो बाकी नहीं होते, बिकॉज कलिंग वॉज, ठीक है, दैट्स व्हाई। नाउ 14th एडिक्ट, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, क्या पर्पस क्या है, क्लियर। लाइक पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स इज टू प्रोपोगेट द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पीपल, दैट इज द फोर्थ, clear। so identify all these, shortlist all these edicts, go through the PYQs also, make your own questions and solve it through the name of edicts and the features of edict, clear। this is how you should learn all these information। then some of the major pillars edict features the following। तो first pillar edict social code। अब ये हमने अभी तक रॉक एडिक्ट के बारे में बात करी है, नो पिलर एडिक्ट। तो पिलर एडिक्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक फर्स्ट पिलर अबाउट सोशल कोड, देन सेकंड पिलर अबाउट द डिस्क्राइब धम्मा, clear। then third pillar about soul and sin, clear। and the concept of soul and sin further influenced by the concept of Buddha, ठीक है। so if you live a good life, if you get out of from the cycle of birth and all these things, so we should away from sin, clear। then fourth pillar एडिक्ट राजूकास के बारे में, then fifth pillar edict talks about popularly known as, देखो ये जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है यही है दिल्ली टोपरा पिलर, टोपरा इज इन हरियाणा, वहां पे अशोका ने ये टोपरा पिलर लगाया था, जो पिलर को ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, ठीक है। तो टोपरा पिलर एंड मेरठ पिलर, दो ऐसे पिलर हैं जिनको ट्रांसफर किया गया दिल्ली, क्लियर। तो टोपरा, दिल्ली टोपरा फिफ्थ पिलर। सिक्स्थ पिलर एडिक्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेवेंथ पिलर टॉक्ड अबाउट धम्मा, क्लियर। okay so pillar edicts have been found at also Lauria Araraj, Lauria Nandanagar, so these are the sites you should know once, go with that, so that when it is asked about which of the following sites related to the pillar edict, so Lauria Araraj, Lauria Nandanagar, ये सब आपके सरप्राइज ना हो, ठीक है। all these sites like Lauria Araraj, Lauria Nandanagar, रामपुरवा, निगाली सागर को छोड़ दो अगर तो निगाली सागर इन नेपाल, ठीक है, बाकी सारी 3 साइट बिहार में है, ठीक है, चंपारण के आसपास, एंड देन सारनाथ बनारस में आपको पता ही है, टोपरा इन हरियाणा and Meerut in Uttar Pradesh, okay fine। so twice you should go with this name, ठीक है, and try to write these names, एक बार लिख लोगे तो बैक ऑफ द माइंड कहीं सेव हो जाएगा, ठीक है, बट कीप रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। सो टोपरा के बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ बुल कैपिटल, दे आर पिलर विदाउट इंस्क्रिप्शन सच एज, जो रामपुरवा का बुल कैपिटल है और जो हमें लायन कैपिटल मिला है सारनाथ से, वैशाली से सॉरी, तो वो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी इंस्क्रिप्शंस लिखे, ठीक है। नाउ
अदर रिलेवेंट इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं? सो इलाहाबाद का कोसम इंस्क्रिप्शन कौसाम्बी इंस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस इंस्क्रिप्शन अशोका वॉन्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि पहले केवल एक ही इंस्क्रिप्शन है दैट टॉक्स अबाउट क्वीन एंड हिज सन, है ना, तो कौन सा? प्रयागराज वाला। तो दैट इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अशोका वॉन्ट्स मेंबर्स ऑफ द संघ अगेंस्ट कॉजिंग डिवीजन इन द रैंक्स, तो कहा हायरार्की नहीं क्रिएट करनी है, रैंक्स नहीं क्रिएट करना है, तो वांट किया। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन इज ऑलरेडी, सो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है कौशाम्बी का प्रयागराज वाला, उसमें अशोका का भी इंफॉर्मेशन है प्लस उसमें समुद्रगुप्त का भी इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक ही इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने कहा कि 2 पिलर करने से अच्छा है एक ही पिलर में अपना भी इंस्क्रिप्शन करवा दिया, जगह बची हुई, तो इस तरीके से उस इंस्क्रिप्शन को यूज किया। राइट नाउ जहांगीर वाज प्रोबब्ली रिस्पांसिबल फॉर इट्स रिमूवल फॉर द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद। क्लियर? जो भी म्यूजियम का पार्ट है, सेफ है ये। नाउ गिरनार रॉकेट, सो अगेन रुद्रदामन वन, जो जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, रुद्रदामन वाले में अशोक का भी इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक, क्लियर? नाउ ये काठियावाड़ गुजरात में है, याद रखना। ठीक है? देन कांधार इंस्क्रिप्शन, दैट्स लाइक अरामाइक लैंग्वेज यूज हुई यहाँ पर। देन निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, अगेन इन नेपाल, मैंने बताया था कि निगाली वाला कहाँ है? नेपाल में। देन रुमन दे इंस्क्रिप्शन नेपाल, अगेन इस बार, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। देन सन्नाथ इंस्क्रिप्शन इन कर्नाटका। कलिंगा एडिक्ट हमको पता ही है, भौलिया एंड जोगड़ा, तो ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, दैट इज मेंशन्ड ओवर देयर। कलिंगा एडिक्ट। सौगड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन महास्थान इन महाराष्ट्र। देन माइनर रॉक एडिक्ट 1, माइनर रॉक एडिक्ट 3, inscription of Sahbazgarh in Mansehra, Kharosthi script at the border of Jammu and Kashmir and Pakistan, ठीक है, जो पीओके का पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर ये एडिक्ट्स है। देन ब्रह्मगिरी, माइनर ऑफ एडिक्ट 1 and 2 टॉक अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे के बारे में एक बार पढ़ के और एक बार अपने हैंड हाथ से उसको स्क्रिप्ट करना। ठीक है, लिखना, केवल पढ़ना ही नहीं है, अंडरलाइन ही नहीं करना है। जब लिखोगे तो एक बार याद जल्दी होता है। पहले ना कल कैसे कैसे इन चीज़ों को एग्जाम तक याद करें, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड वंस यू राइट ऑल दिस थिंग्स, लाइक ऑल द सोर्सेस यू शुड नो, लाइक यू शुड राइट लाइक दैट द सोर्सेस टू कंस्ट्रक्ट द मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, तो उसमें जितनी भी बुक्स हैं सबको एक साथ एक पेज पे अपने हाथों से लिखो, उस तरह देन अंडरलाइनिंग ऑल। एक बार लिखोगे तो बैक ऑफ द माइंड सेव होगा कहीं ना कहीं। जब आपने लिखा होगा तो आपको जरूर एग्जाम में याद आएगा कि मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लिम्स में आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगी कि दैट वाज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जब ज़्यादा सोचोगे तो होता है गलत, है ना, ये तो होता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली वे टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो अब बात करेंगे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑल दीज सोर्सेज प्रोवाइड अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न सोसाइटी। क्लियर? सो देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द अशोका एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन दिस धम्म प्रोपोगेशन। तो धम्म प्रोपोगेशन चीज़ों की बात की गई है, दैट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द modern administration during the Chandragupta Maurya and the modern administration during Ashoka. ठीक है, otherwise all the like employment of the employees were almost common. ठीक है, clear? So here king was the nucleus and was assisted by मंत्री परिषद। तो याद रखना कि मॉडर्न एम्पायर में now the polity became central, ऐसा समझो कि central authority, then authority started disintegrated। ठीक है, post modern and again in Gupta empire started integrating, then again post Gupta started disintegrating, फिर अगेन दिल्ली सल्तनत आएगा जब, तब होगा फिर से इंटीग्रेशन। फिर पोस्ट दिल्ली सल्तनत कुछ लाइक जब लोधी का पीरियड आएगा तो स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। फिर बाबर के टाइम तक फिर से इंटीग्रेटिंग स्टार्ट होगा, हुआ नहीं होगा क्योंकि बाबर सबसे छोटा एरिया बाबर का था। देन रीचेस टू द पीरियड ऑफ अकबर एंड औरंगजेब, फिर देन तो इस तरह से ये हाई एंड लो पीक्स बनेंगे। आपको समझना है इन चीज़ों को, तभी आप तो समझ पाओगे कब इंटीग्रेशन हुआ कब डिसइंटीग्रेशन हुआ। क्लियर? सो हाईएस्ट ऑफिसर्स वर कॉल्ड तीर्थास और अध्यक्षास। तो जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो काम करते थे अदर देन मंत्री, ठीक है, तो उनको बोलते थे अध्यक्षास, सुपरिटेंडेंट्स। लाइक अंडर द मंत्री देयर वुड बी सुपरिटेंडेंट्स, अध्यक्षास। क्लियर? एंड द मंत्रीज वर कॉल्ड लाइक मंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, अध्यक्ष, लाइक हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। So there would be council of minister with ministers and there would be head of council of minister. Yeah. So मंत्री परिषद अध्यक्ष। पुरोहित, chief priest was called पुरोहित, right? तो चाणक्य has been पुरोहित also, ठीक है। और फिर चाणक्य का जब सम्मान नहीं हुआ है ना, जब नंद पीरियड में, तब उसने कसम खाई कि फिर बैठेंगे तो बगल में ही, ठीक है, राजा के, चाहे राजा हमारा बनाया हुआ वो, है ना। सो अगर कसम हो तो कैसी हो, चाणक्य जैसी हो, है ना। So सेनापति, कमांडर इन चीफ, युवराज, क्राउन प्रिंस, समाहर्ता, रेवेन्यू कलेक्टर। तो दीज टर्म्स विद जब भी कोई टर्म आएगा तो याद रखना टर्म पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा।
तो टर्म को कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करना होगा। समाहर्ता मतलब ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो समाहर्ता देन स्पाइस, तो यहाँ पर गुड़ पुरुष कहते थे, क्या क्या बोलते थे, टर्म ऐसे दिया होगा गुड़ पुरुष। तो कहा था सर हमने तो स्पाइस पढ़ा हुआ था लेकिन गुड़ पुरुष आ गया वहाँ पे, तो पता ही नहीं कि गुड़ पुरुष क्या होता है, ठीक। स्पाइस एंड इन्फॉर्मर, तो प्रतिवेदक। तो इसको जब कभी कभी आप ये ट्रबल फील करते होगे जब आप पढ़ रहे होते होगे ना, तो कैसे पढ़ा जाए उसको, तो उसको हिंदी के टर्म में पढ़ो और फिर हिंदी के टर्म में ब्रेक करो तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे राज तरंगिनी को कुछ लोग बोलते हैं रजत रंगिनी, लाइक रजत मीन सिल्वर, रजत एंड अब if you write राज तरंगिनी, so you can read in two ways। राज तरंगिनी जब लिखोगे RAJA तरंगिनी, तो उसको आप कैसे पढ़ोगे, तो एक मेथड है कि रजत, रजत हो गया एंड देन रंगिनी। some people say रजत रंगिनी, they don't get the information about the theme of this। तो एग्जाम में भी जब पढ़ोगे मान लो को नहीं आता है, so it's about what, राज तरंगिनी means the waves of rules। Raj matlab rulers, Tarangini means waves, so it's all about the information of various rulers। Are you getting that point? So which of the following textbooks provides the information about the rulers? तुम तो रजत रंगिनी समझ रहे हो उसको, जब राज तरंगिनी समझोगे तो समझ में आएगा उसका थीम, जो छुपा हुआ मतलब है, क्लियर है ना। तो इसलिए उसको भी प्रोनाउंसिएशन समझना बहुत जरूरी है। तो सीता अध्यक्ष सुपरवाइज एग्रीकल्चर, देन पंडित अध्यक्ष युक्ता, सब पढ़ लोगे ना ये सब राजू का वगैरह, ठीक है। नो विलेज लेवल ऑफिसर ग्रामिका, ठीक है। हाँ गर्मी लग रही है, ऑन कर लो उठ के फिर एक बार में उठ के। हाँ कौन सा पढ़ने, हाँ यस संस्कृत वर्ड है सारी, कुछ पाली भी है, धम्मा, धम्मा इज व्हाट, दिस पाली वर्जन ऑफ धर्म। तो ज्ञात्रक कुल कल बताया था ना, महावीर का ज्ञात्रक लिखा होता है जना, तो JN लिखते ज्ञात्रक, तो दैट्स द पाली टर्म एक्चुअली। कभी वो ट्रबल होता है आपको पढ़ने में कि सर ये टर्म ऐसे कि पढ़ते नहीं, बिकॉज ऑफ दिस लाइक डिस्टॉर्टेड वर्जन, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मींस लाइक डिस्टॉर्टेड वर्जन इन द मॉडर्न टर्म्स, लाइक फॉर देम वी आर द डिस्टॉर्टेड वन, ठीक है, बिकॉज दे आर द ओरिजिनल originates with Pali and अपभ्रंश, ठीक है। तो समस्त अध्यक्ष, देन नवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, कलेक्टर ऑफ टोल्स, ठीक है। तो एक बार वो सारे टर्म्स देख लो, कुछ टर्म तो बहुत कॉमन होंगे, आप उसको पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ विलेज लेवल ऑफिसर्स ग्रामिका बोलते थे, ग्राम विद्या पंचायत कंसिस्ट ऑफ विलेज। तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब इन टर्म्स को पढ़ोगे तो आप दो तरीके से पढ़ना, पहला कि उनका मीनिंग तो समझना ही समझना, ठीक है। दूसरा ये समझना कि एक्चुअली उनका रोल क्या था, लाइक ग्राम वृद्धास पंचायत कंसिस्ट ऑफ विलेज एल्डर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आती है कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ पंचायत ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी। तो जब आप ये पॉइंट पढ़ोगे ना ग्राम वृद्धास, तो आपको समझ में आएगा कि पंचायत एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, क्लियर। सो ऐसा सिस्टम नहीं था जो चोला के टाइम पे था, लेकिन देयर वुड बी सम एल्डर्स हु वुड हैव द डिसीजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बट जो ऑर्गेनाइज सिस्टम था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हम क्रेडिट देते हैं चोला एम्पायर को, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी फाइंड द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन विच इज द पार्ट ऑफ द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी फाइंड द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। लेकिन इट वाज नॉट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पंचायत ड्यूरिंग द, पंचायतें हुआ करती थी, but there was not proper organization of panchayats, there was not the proper method of election on all this, clear। now जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ टू टाइप, दो तरह के कोर्ट हुआ करते थे, एक होता था धर्मास्थीय कोर्ट, एक होता था कंटक शोधन। अब इसको ऐसे पढ़ोगे कंटक शोधन तो समझ में आएगा, कैसे पढ़ोगे इसको, अगर ऐसे पढ़ोगे कंटका कंटकासो और धन तो नहीं समझ पाओगे। कंटक शोधन का मतलब है, कंटक मतलब कांटा, शोधन मतलब हटाना, तो कांटों को हटाना मतलब क्रिमिनल्स को रिमूव करना सोसाइटी से, समझे। जब कांटों को रिमूव करोगे तो इट्स लाइक द यू आर गेट फॉर जस्टिस, राइट। सो वर आल्सो प्रोवाइडेड ओवर बाय द थ्री जजेस। अब देखो जो जस्टिस सिस्टम होता था इसमें अमात्य भी होते थे एंड दोज हु आर लाइक दोज प्रीस्ट हु आर वेल अवेयर अबाउट द धर्मशास्त्रास, ठीक है। सो इट्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, क्लियर।
तो जुडिशरी में वो लोग होते थे जो जिन्होंने आईपीसी को पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हुआ है। वैसे ही इसमें जो रिलीजियस प्रीस्ट हुआ करते थे जिनको धर्मशास्त्र की नॉलेज हुआ करती थी, तभी तो, क्योंकि धर्म लाइक पनिशमेंट वाज बेस्ड अपॉन धर्मशास्त्र ओनली। अभी वैसा कोई जस्टिस कोड नहीं बना है, ठीक है, क्रिमिनल कोड नहीं बना है, वो बाद में बनेगा। सो हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अमात्यास विल आल्सो द मेंबर, ठीक है, तो जिससे कि द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन द जुडिशरी विद रिलीजन दे कलेक्टिवली इम्पार्टिंग जस्टिस। क्लियर? दो तरह की कोर्ट, तो पहली जो कोर्ट धर्मशास्त्र वाली होती थी दैट्स डील विद सिविल लॉ ओनली, लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एंड ऑल दिस, और जो दूसरी होती थी दैट्स इज रिमूवल ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड क्राइम्स, ठीक है, तो ये इट्स लाइक सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड। क्लियर? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो जहाँ पे क्राइम इशू होता था तो वहाँ पे कंटेक्चुअल काइंड ऑफ कोड लगती थी, और जहाँ पर जो सोशल इश्यूज होते थे, जहाँ पर लाइक मैरिजेस, डिवोर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इंटरनल इश्यूज, प्रॉपर्टी इश्यूज, तो वहाँ पर सिविल कोड, ठीक है, लाइक धर्मस्थ्य कोड, राइट। सो सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य, चाणक्य ने सप्तांग थ्योरी इसके थ्रू, लाइक दिस इज वाज द बेसिस ऑफ द रूलिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थ्रू चाणक्य adopted these statics to establish empire and expand his empire। तो ये थ्योरी में कितने एलिमेंट थे? 7 एलिमेंट थे। 7 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? तो पहला था कि राजा, मतलब राजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, द किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हैव द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो राजा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, राजा वाज द एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटी। देन वी शुड हैव द मित्र, अगर हमारे पास मित्र स्टेट नहीं है, लाइक वी हैव द फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, देन वी कैन नॉट ओवरकम विद द एनिमी स्टेट, सो वी शुड हैव एन अमात्य आल्सो। अमात्य मींस सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स, so we have the good set of ministers as well। तो ministers होने चाहिए, और हमारे पास enemies ally होने चाहिए, जो friendly states है वो होने चाहिए। we should have दुर्ग, दुर्ग मतलब it's not only about the physical boundaries, it's not only about the physical structure but about the security, it should be the manned security also। like अभी हमारा देखा जाए तो हमारे पास दुर्ग क्या है, तो जो borders पे लोग खड़े हैं हमारे लिए, वो दुर्ग है हमारे लिए, because we cannot have the physical boundaries, है ना, लाइक फिजिकल फोर्ट्स। क्लियर? तो वॉल नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है, जैसे एट दैट टाइम देयर मस्ट बी दुर्ग, फिजिकल वॉल शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट, राइट। बट जब हम मॉडर्न टाइम से कंपेयर करते हैं तो वी शुड हैव फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग विद द अरेंजमेंट ऑफ द स्पाई सोल्जर्स एट बॉर्डर। दुर्ग फोर्ट होना चाहिए। देन जनपदा टेरिटरी, लाइक जनपदा टेरिटरी का मतलब है कि द एम्पायर शुड हैव द administration which should be based upon the division of territory। it means this power should be centralized but the administration should be decentralized। समझ में आ रही है? power should be centralized, कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? किंग के पास। एडमिनिस्ट्रेशन किंग के पास नहीं होना चाहिए, कि इट डज नॉट मीन दैट ओनली वन, देयर शुड बी ओनली वन फाइनेंस मिनिस्टर रनिंग अक्रॉस ऑल द कंट्री, across all the territory। there should be some certain employees also at the district level who can delegate the work, who can execute the work। so पूरी टेरिटरी एक नहीं होनी चाहिए, पूरी टेरिटरी को अलग अलग जनपदास में डिवाइड किया जाना चाहिए। that was the idea behind that। the जनपदा should be there, so polity should be centralized and administration should be decentralized। that was the idea behind that जनपदास। clear? so now कोशा द ट्रेजर, अल्टीमेटली यही है, ठीक है। now सेना, army, the soldier should be efficient। so here when he talked about सेना, it means that should be efficient also। then army should have a very good network of spies as well। so they are सप्तांग थ्योरी। now सोसाइटी कैसी होती थी? फोल्ड वर्ण सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था महाजनपदा में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। सोसाइटी मोर और लेस वैसी थी। देखो कहीं भी आप कुछ पढ़ोगे तो लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट चेंजेस इन डायनेस्टी, ठीक है, सो देयर वुड बी नो ग्रेव चेंजेस और वेरी शार्प चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, ठीक है। व्हेन सोसाइटी मूव फ्रॉम वन डायनेस्टी टू अनदर डायनेस्टी, पॉलिटिकल चेंजेस देखेंगे आप, सोशल चेंजेस बहुत ही ग्रेजुअल होंगे। तो और वो चेंजेस हुए क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स। तो ये चेंजेस इसलिए दिखे बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सोसाइटी में ये चेंजेस दिखे बिकॉज नाउ द रिजिड वर्ना सिस्टम बिकेम लिटिल लिबरल बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। नाउ
but they were existing. Slavery was existed and society was divided into number of caste and subcaste. So अब ये टाइम जब आएगा जब कास्ट सबकास्ट, और आप याद रखना कि बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स विद द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स नाउ, ठीक है, तो शकाज आएंगे, इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस आएंगे, पार्थियंस आएंगे, कुशानाज आएंगे, तो दे विल एक्चुअली अमलगमेट, दे विल जेल विद द सोसाइटी। तो अब एक बात बताओ, अगर कुशानाज आके यहाँ बस गए, रहने लग गए, तो किस सिस्टम में रखोगे? वर्ण सिस्टम में। कौन से वर्ण में रखोगे? समझ में आई बात? तो इस वजह से वर्ण में फर्दर कास्ट आई, फिर सब कास्ट आई, लाइक सम ब्राह्मणास मेंशन देम एज मलेच्छास। तो ये जो जैसे कुशानाज आए, शकाज आए, तो कहा ये जो लोअर लेवल के शकाज थे, बिल्कुल लेबर क्लास के, तो उनको चांडाल कैटेगरी में भी रखा। कुछ शकाज थे जो रूलिंग किंग के, क्षत्रिय में रखा। कुछ शकाज थे जो मिडिल क्लास के थे, तो उन्हें मलेच्छास कह दिया गया कि उनके लिए अलग सेपरेट टेरिटरी बनाएगी रहने के लिए, समझ गए? सो इस तरह से हाउ दे इन्वॉल्व इनटू द ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ सोसाइटी, दिस वर्ण सिस्टम। क्लियर? तो वर्ण सिस्टम एक्सपेंडेड थ्रू कास्ट एंड सबकास्ट। So this is how we find the modern structure of various castes, subcastes. ठीक है? Now वर्ण शंकर विवाह, here वर्ण शंकर विवाह also and intervर्ण और intercaste marriages too are reported. ठीक है? So ये एक important example है। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम दो तरह का मैरिज का टाइप बताया गया है। अनुलोम का मतलब है ग्रूम ऑफ हायर वर्ण, तो जो कॉमन होता है वो अनुलोम। प्रतिलोम कब होगा? जब रिवर्स होगा, मतलब हायर वर्ण की वुमेन होगी और लोअर वर्ण का मैन, दैट इज कॉल्ड एज प्रतिलोम विवाह। ठीक है, दैट्स आल्सो रिपोर्टेड। देन व्हाइल कैटेलिया मेंशन 9 कैटेगरीज ऑफ स्लेव्स, मेगास्थनीज रिपोर्टेड दिस एब्सेंस। एक ही कंट्रोवर्सी है कि मेगास्थ और कौटिल्य ने मेंशन किया है टाइप ऑफ स्लेव्स, जबकि मेगास्थनीज ने कहा कि लाइक ही कुड नॉट आइडेंटिफाई स्लेव्स। लेकिन जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक दोस हु आर ऑप्शनल, दे आर वेरी वेल अबाउट दिस फैक्ट्स। So Megasthenes actually could not identify about the type of slaves, right? So जब slaves की बात की गई तो हमारा एक्चुअली जो slave system था इंडिया में और जो slave system था यूरोप में, that is completely different। ठीक है, तो इंडिया में जो जो चाणक्य ने जिन स्लेव्स की बात करी अपने अर्थशास्त्र में, वो उन स्लेव्स की बात करी है जो लाइक दे वर आइदर परचेज्ड और those were the agricultural laborers also, slaves। ठीक है, और जो slaves की बात यूरोप में की जाती है, these were completely different। those slaves were also those slaves, they were actually purchased, they were brutally used for manual works। लेकिन अर्थशास्त्र में जो स्लेव्स की बात की गई है उनको पर्सनल हाउस होल्ड पर्पज से नहीं रखा जाता था, उनको रॉयल पैलेसेस में एम्प्लॉय किया जाता था। ठीक है, रॉयल पैलेसेस में ऐसे स्लेव्स का मेंशन किया अर्थशास्त्र में 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स। ठीक है, जहाँ पर मंत्री अपने स्लेव्स रखते थे, जहाँ पर रॉयल जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपने स्लेव रखते थे। लेकिन यूरोप के जो स्लेव्स हैं, इट्स लाइक दैट नोबिलिटी आल्सो यूज्ड सम स्लेव, व्हेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री वी आल्सो लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ स्लेव्स। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्लेव्स, those nature of slaves were absent during that period, जो nature of slaves थे। तो अर्थशास्त्र में जो स्लेव्स थे they were employed in रॉयल हाउस होल्ड्स, ठीक है, या पैलेसेस, क्लियर, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो जब मेगास्थनीज यहाँ आया उसने इनको लेबरर ही नहीं माना, ठीक है, क्योंकि देयर वाज मोर ब्रूटल यूज ऑफ लेबरर्स देयर इन ग्रीक, ठीक है, ग्रीस। So that's why there was a nature of difference, so he couldn't identify whether they are slaves or not. Clear? So that's why these were the actually findings of historians. So as per the Jataka tales, untouchables like Chandala, Nishad, Shabar, etc. existed and were treated in तो चांडालास को कैटेगरी थी, निषाद को भी मेंशन किया क्योंकि जो इस ड्यूरिंग दैट टाइम्स जातका टेल्स, जो जातका स्टोरी थी, हमने पढ़ा सुत्त निकाय का पार्ट थी, याद आ रहा है कुछ? तो उसमें जातका स्टोरीज दे वर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द चांडाला, निषाद। तो आपने भी पढ़ा होगा रामायण में निषाद का टर्म यूज हुआ है ना, और चांडालास वर आल्सो देयर। तो चांडाला, शबर, जो एक शबर से बना शबरी, शबरी को शूद्र माना गया था ना, तो लाइक दीस वर द ट्राइब्स। नाउ वुमेन्स पोजीशन सोसाइटी डिटेरियोरेटेड, तो कहीं भी आपसे पूछा जाए अदर देन ऋग्वैदिक पीरियड तो वुमेन की कंडीशन खराब ही है, ठीक है, खराब होती रही है। नाउ मोस्ट आर्टिसंस वर शूद्रास येट दे वर वर्स्ट पेड एंड सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर। क्लियर? So these forced labor are different from the slaves from the European society. Now modern economy,
तो इकोनॉमी में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि महाजनपदा में आयरन टूल्स यूज होते थे, तो सिमिलरली यहाँ पे आयरन टूल्स यूज होते थे, क्लियर। देन अकरेंस ऑफ फेमाइंस इज ऑल्सो रिपोर्टेड। तो फेमाइंस का हमने ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फेमाइंस की वजह से देव स्कूल बने थे जैनिज्म में, है ना। तो Shwetambar and Digambar, that's because of famine. So famine occurred over there. Tolls were also levied on commodities. The normal taxation rate was 1/6. तो महाजनपद में हमने यही पढ़ा था, 1/6 था, ठीक है। मॉडर्न स्टेट हैड स्ट्रिक्ट लीगल एंड पीनल सिस्टम, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। हमने देखा कि दो तरह की कोर्ट हुआ करती थी। Now here this important point is that tax evaders were attracted death penalty even. जो टैक्स नहीं पे करते थे उनको डेथ पेनल्टी तक का हमें ऐसे इंसिडेंसेस मिले हैं, ठीक है। नाउ पंच मार्क्ड कॉइन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वर मोस्टली सिल्वर, दे वर आल्सो गोल्ड बट मोस्टली सिल्वर, ठीक है। बट दे वर एक्चुअली पंच वर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। बट देखो अब यहाँ पे कॉइन्स में आपको एक कंफ्यूजन होगी कि हमने देखा कि महाजनपदा के टाइम पर कॉइन्स आ चुके थे, गोल्ड कॉइन्स। तो कॉइन्स कैसे समझना कि पीपल वर यूजिंग, लाइक अगर मैं अभी कहीं जाऊँ कुछ मार्केट में खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदूँ तो अपनी अंगूठी निकाल के दे दूँ, ठीक है, तो मैं दे सकता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, खरीद सकता हूँ। या हो सकता है मैं कुछ ऐसा चीज़ खरीदूँ जिसकी कीमत उस गोल्ड रिंग के बराबर हो, ठीक है। तो दिस इज माई पर्सनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ट्रेड, ठीक। बट व्हेन गवर्नमेंट इशू गोल्ड रिंग्स टू परचेज थिंग्स, इट मीन्स लाइक गवर्नमेंट इशूज कॉइन्स, क्लियर। जब अगर कहा जाता है कि गवर्नमेंट दिस लाइक इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु इशूड गुड नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो इट मीन्स दैट these gold coins were issued by particular dynasty by using his name. तो दो तरह की करेंसी हो गई आपके पास, एक जो सरकार ने इशू करी है, मैं धारक को वचन देता हूँ लिखा होता है ना, तो आरबीआई स्टैंड होती है कि वो सर्वमान्य है। और एक हो गया कि आप अपने पर्सनल कुछ भी ऑर्नामेंट जिनकी कुछ वैल्यू होगी उनको ट्रेडिंग पर्पज से यूज करें, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो गोल्ड कॉइन्स वर यूज लाइक कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड बाय मेटलर्जी, ठीक है, थ्रू द मेटलर्जी। देयर इज अ डिफरेंस कि क्या रॉयल हाउस होल्ड्स ने उसको इशू किया है, क्या वो रॉयल पॉलिटी ने उसको इशू किया है, लाइक फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, क्लियर। तो दिस इज डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? तो पूछ लो अगर हो तो हैंड रेज करके, अदरवाइज आगे बढ़ते, ठीक है। सो ये जहाँ भी अगर कुछ ऐसा मिलता है तो डो नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू सच डिबेट कि कॉइन्स ऐसे होते थे वैसे होते थे, ठीक है। तो एग्जिस्ट करते थे, बट जब पैक की बात आती है तो लाइक कुशानास इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड टिल दे रूल, बट इंडो ग्रीक्स आल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स। Gold coins were also found during the Mahajanpada period and the modern period, clear. But the issue is that whether these rulers issued them or they were found only for the trading purposes, clear. Now hired labor were also called कर्म, ये हमने पहले भी पढ़ा है, कर्मकाज, ठीक है। तो कर्मकारास का मतलब होता था hired labor. They were state monopoly of mining, forest, salt, sale of liquor, manufacturer of arms and metal, clear. So that is to state owned industries. तो अब आगे अशोका के बाद जब अशोका की डेथ होती है, ठीक है, तो वृहद्रथ बिकेम द लास्ट रूलर। तो अशोका के बाद जो फर्दर रूलर्स आए उसमें लास्ट रूलर था वृहद्रथ, जिसको ही वाज मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, राइट, एंड एस्टैब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी. Post Ashokan emperor were weak also, and also they followed the policy of Dhamma because Ashoka established Dhamma policy. So further annexation was not done by further rulers. Yeah.